Bismillah Rahman Rahim and Assalamu alaikum, dear student. Welcome to Anpal Institute of Health Sciences, Lahore. And today we are going to start Anatomy and Physiology for BSN first semester. And this is our unit number 1. In first unit, we will discuss basic anatomical terminologies. So first of all, we need to know what is anatomy and what is physiology and what is the difference between anatomy and physiology. So anatomy is the study of the structure of the body and their relationship among between body parts. It focuses on what the body looks like and where different structures are located, and it examines the size, shape, location, and arrangement of organs, tissues, and body system. For example, the heart has four chambers, and the lungs are located on either side of the heart, and the femur is the longest bone in the human body. So this is anatomy. In anatomy, we will discuss the structure of the body and where each body part or each organ is located, which is their exact location, and how body parts are related with each other. On the other hand, physiology is the study of how the body structure work or how the body structure function. Physiology focuses on how organ, tissues, and cells carry out their job, and it explains the process that keep the body alive and functioning normally. For example, how the heart pumps blood throughout the body, how the lung exchange oxygen and carbon dioxide, and how muscle contract to produce movement. So this is the function of the body, different organ, and physiology. We will discuss how heart pump blood, how kidney filter waste from the blood. All these functions we will discuss. And how anatomy and physiology are related. इसमें relationship किस तरह से है? Anatomy and physiology are closely connected because structure determines function. The structure of the body part allow it to perform specific function. For example, the heart has thick muscular wall, so this is anatomy. We know that heart has a thick muscular wall and heart containing four chamber. So what is the function of the heart? Heart allowing to pump blood with pores. हार्ट हमारे साथ क्या करता है? ब्लड को पंप करता है पूरी बॉडी में from left ventricle into the aorta. And the lungs contain millions of tiny sacs called alveoli. So this is anatomy. And what is the function of the lungs? Providing a large surface area for gaseous exchange. So this is physiology. I hope you will understand the difference between anatomy and physiology in how anatomy and physiology are related to each other. So in the next slide, we will discuss different position of the body, anterior and posterior. So what is anterior and what is posterior position of the body? Anterior to be situated near or toward the front of the body. ह्यूमन बॉडी का जो फ्रंट साइड है उसको हम एंटीरियर कहते हैं, या उसके करीब कोई बॉडी ऑर्गन है तो उसको भी हम एंटीरियर कह सकते हैं. एंड पोस्टीरियर टू बी सिचुएटेड टुवर्ड द बैक ऑफ द बॉडी. जितनी भी बैक सरफेस है, बैक बॉडी एरिया है, या वहाँ पे जितनी भी ऑर्गन है उसको हम क्या कहते हैं? पोस्टीरियर. नेक्स्ट हमारे साथ है सुपीरियर, इंफीरियर और क्रेनियल कॉर्डुअल.
Superior mean to be situated toward the upper part of the head of the body. Position above another organ or structure. हमारे साथ जो भी बॉडी पार्ट अपर पार्ट में मौजूद हो, टुवर्ड द हेड ऑफ द बॉडी मौजूद हो, या एक दूसरे के ऊपर एक आर्गन हो, उसको हम सुपीरियर कहते हैं। एंड इंफीरियर मीन लोअर पार्ट की तरफ जब लोकेटेड हो कोई आर्गन, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, या पोजीशन बिलो अनदर आर्गन और स्ट्रक्चर, उसको हम इंफीरियर कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा आसान टर्मिनोलॉजीज है, उसको आपने याद करना है, क्योंकि उससे क्वेश्चन में एमसीक्यूज भी आ सकता है, क्वेश्चन भी आ सकता है उससे। क्रेनियल मीन रेफर टू द हेड। हेड को हम क्रेनियल कहते हैं, वहाँ पे जो ब्रेन वगैरह है, जो नर्व्स है, उसको हम क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। एंड कॉर्डल मीन रेफर टू द टेल। एंड जो नीचे की तरफ है, टेल की तरफ है, सेक्रियम रीजन है, उसको हम कॉर्डल कहते हैं। नेक्स्ट हमारे साथ है मेडियल एंड लेटरल। मेडियल मीन टू बी क्लोजर टू द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। मिड लाइन की तरफ जो आर्गन हमारे साथ लोकेटेड होते हैं, उसको हम मेडियल कहते हैं। एंड लेटरल हमारे साथ जो अपोजिट डायरेक्शन में के होते हैं, या टू बी फर्दर अवे इन द डायरेक्शन ऑफ ईदर साइड फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी और स्ट्रक्चर। मिड लाइन से दूर जो स्ट्रक्चर होते हैं, जो बॉडी आर्गन होते हैं, उसको हम लेटरल कहते हैं। नेक्स्ट हमारे साथ है प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। प्रॉक्सिमल मीन टूवर्ड और नियरेस्ट द ट्रंक और द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ ए पार्ट। कोई भी आर्गन आपके साथ जो ट्रंक के साथ हो, या पॉइंट ऑफ ओरिजिन के करीब हो, जिस जगह से वो ओरिजिनेट हुआ है। जिस तरह से आप हैंड को देख सकते हैं, ये शोल्डर से ओरिजिनेट हुआ है, तो ये उसका प्रॉक्सिमल पार्ट है। और डिस्टल पार्ट आप फिंगर को कह सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन से अवे है, फर्दर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट एनाटॉमिकल पोजीशन है। नेक्स्ट हमारे साथ है यूनिलेटरल एंड बायलेटरल। यूनिलेटरल मीन कोई भी पार्ट, बॉडी पार्ट सिर्फ एक साइड पे लोकेटेड हो, उसको हम यूनिलेटरल कहते हैं। और बायलेटरल मीन दोनों साइड पे लोकेटेड हो, तो उसको हम बायलेटरल कहते हैं। जिसे आप लंग्स को देख सकते हैं, लंग्स हमारे साथ दोनों साइड पे होते हैं, हैंड्स हमारे साथ दोनों साइड पे होते हैं। और यूनिलेटरल मीन जब एक साइड पे एक आर्गन हो, जैसे हमारे साथ हर्ट हो गया, वो सिर्फ लेफ्ट साइड पे है, तो उसको हम यूनिलेटरल कहते हैं। नेक्स्ट हमारे साथ है सुपरफिशियल और इंटरमीडिएट और डीप। सुपरफिशियल मीन नियर द आउटर सरफेस ऑफ द बॉडी। स्किन इज सुपरफिशियल टू द मस्कुलर लेयर। जो आउटर बॉडी सरफेस पे लोकेटेड हो, जैसे स्किन है हमारे साथ, उसको हम सुपरफिशियल कहते हैं। इंटरमीडिएट मीन बिटवीन अदर टू स्ट्रक्चर। जैसे हमारे साथ क्या है, द नेवल इज इंटरमीडिएट टू द लिप आर्म एंड दिस कंट्रोलेटरल लेग। जो नेवल है हमारे साथ, तो दरमियान में आता है लिप आर्म के एंड राइट लेग के। एंड डीप हमारे साथ जो स्किन से फर्दर अवे हो, द मस्कुलर लेयर इज डीप टू द स्किन। मसल का जो लेयर है हमारे साथ, वो डीप है, इनसाइड द स्किन है, बट सुपरफिशियल टू इंटेस्टाइन। लेकिन इंटेस्टाइन के लिए वो क्या है, सुपरफिशियल है। और इंटेस्टाइन एज कम्पेयर टू मसल, वो हमारे साथ फिर डीप में आते हैं, डीप लेयर में। नेक्स्ट हमारे साथ है टर्म्स ऑफ मोमेंट। मुख्तलिफ मोमेंट हमारे बॉडी पार्ट करते हैं, उसको अभी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एक होता है फ्लेक्जन एंड दूसरा होता है एक्सटेंशन। फ्लेक्जन मीन टुवर्ड द सेंटर ऑफ द बॉडी, एंड एक्सटेंशन मीन आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी। बाहर की तरफ जब आप मूवमेंट करते हैं, जिस तरह आप पिक्चर में देख सकते हैं, उसको हम एक्सटेंशन कहते हैं। एंड टुवर्ड इनर सरफेस ऑफ द बॉडी, टुवर्ड पॉइंट ऑफ ओरिजिन, उसको हम फ्लेक्जन कहते हैं।
यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हैं फ्लेक्शन एक्सटेंशन को। नेक्स्ट हमारे साथ है एब्डक्शन एंड एडक्शन। एब्डक्शन मीन मूविंग ए बॉडी पार्ट अवे फ्रॉम द मिड लाइन। जब मिड लाइन से आप बॉडी पार्ट को बाहर ले जा रहे हैं, अवे ले जा रहे हैं, तो उसको हम एब्डक्शन कहते हैं। और एडक्शन मीन मूविंग ए बॉडी पार्ट टूवर्ड द मिड लाइन। मिड लाइन की तरफ अपने हाथों को पाँव को लेके आना, उसको हम एडक्शन कहते हैं। सुपिनेशन एंड प्रोनेशन। सुपिनेशन मीन पेसिंग अपवर्ड। आपका हाथ जो है ना वो अपवर्ड की तरफ हो, उसको हम सुपिनेशन कहते हैं। या आप किसी चीज को पकड़ते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है होल्ड सूप। जब आप सूप के कप को पकड़ते हो, जो जो हाथ इस तरह जिस तरह पोजीशन होता है उसका, वो ऊपर की तरफ आता है, उसको हम सुपिनेशन कहते हैं। एंड प्रोनेशन मीन पेस डाउनवर्ड। इस तरह आप किसी चीज को डालते हो, सूप डालते हो, तो आपका हाथ का जो पोजीशन होता है उसको हम प्रोनेशन कहते हैं। या पिक्चर में आप देख सकते हैं, इसका अपोजिट है प्रोनेशन सुपेनेशन का। नेक्स्ट हमारे साथ है प्लांटर फ्लेक्शन और डॉर्सिफ्लेक्शन। प्लांटर फ्लेक्शन मीन पॉइंट टोज आर पुट डाउनवर्ड। डाउनवर्ड की तरफ जब आप अपने टोस को करते हो, या स्टैंड ऑन टिप ऑफ टोज, इस तरह पिक्चर में आप देख सकते हैं, उसको हम प्लांटर फ्लेक्शन कहते हैं। एंड डॉर्सी फ्लेक्शन मीन अपने टॉयस को अपवर्ड लेके जाना, उसको हम डॉर्सी फ्लेक्शन कहते हैं। इन्वर्जन एंड इवर्जन। इन्वर्जन मीन मूवमेंट ऑफ सोल अपवर्ड इनवर्ड। इनवर्ड की तरफ, मिड लाइन की तरफ, अपनी बॉडी की तरफ लेके जाना अपने सोल को, उसको हम इन्वर्जन कहते हैं। इन्वर्जन मीन मोमेंट ऑफ सोल पुट आउटसाइड या आउटवर्ड। बाहर की तरफ जब आप मोमेंट देते हैं अपने पाँव को, उसको हम इवर्जन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे साथ है मेडियल एंड लेटरल। मेडियल रोटेशन मीन एंटीरियर सरफेस मूव्स टुवर्ड मिड लाइन। जो हमारे साथ आउटर बॉडी सरफेस है, उसको मिड लाइन की तरफ लेके आना, उसको हम मेडियल रोटेशन कहते हैं। एंटीरियर सरफेस मीन द फ्रंट फेसिंग ऑफ द बॉडी ऑर्गन। मतलब जो फ्रंट एरिया है आपके बॉडी का, उसको हम एंटीरियर सरफेस कहते हैं। एंड लेटरल रोटेशन मीन एंटीरियर सरफेस मूव अवे फ्रॉम द मिड लाइन। मिड लाइन से आप उसको दूर लेके जा रहे हैं, तो उसको हम लेटरल रोटेशन कहते हैं। या पिक्चर में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे साथ है सरकमडक्शन। सरकमडक्शन हमारे साथ लैटिन वर्ड है, जिसका मीनिंग है अराउंड या सराउंडिंग मोमेंट। ए सर्कुलर मोमेंट, बॉडी मोमेंट दैट कंबाइन फ्लेक्शन, एब्डक्शन, एडक्शन, एक्सटेंशन। ये सारे चारों मोमेंट उसमें शामिल होते हैं, क्योंकि ये हमारे साथ सर्कुलर मोमेंट होता है। जब आप बॉडी को, अपने हाथों को, पाँव को गोल दायरे में मोमेंट देते हैं, तो उसमें ये सारे मोमेंट कंबाइन हो जाते हैं। जो हमारे साथ फोर बेसिक मोमेंट है ना, फ्लेक्शन, एब्डक्शन, एक्सटेंशन एंड एडक्शन, तो सरकमडक्शन में ये सारे मोमेंट कंबाइन हो जाते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। ये था हमारे साथ यूनिट नंबर फर्स्ट ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, में हमने बेसिक टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस किया, बेसिक बॉडी मूवमेंट को डिस्कस किया। आई होप लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।